ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ سر میری مدد کریں، میرے پیچھے شاہرون خانزادہ کے لوگ پڑے ہیں۔ لائبہ اپنے کالج پروفیسر کی گاڑی کے سامنے آتی خوفزدہ سی بولی۔ وہ بہت سخت مزاج تھا پر لڑکیوں کے لیے ان کا آئیڈیل۔ لائبہ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھی خود کو محفوظ سمجھ رہی تھی، پر جان نکلنے لگی جب اس نے گاڑی ایک عالی شان بنگلے کے اندر لی جس پر شاہرون خانزادہ لکھا تھا۔ وہ چلانے لگی، پوچھنے لگی کہ وہ اس خطرناک شخص کو کیسے جانتے ہیں اور اسے یہاں پر کیوں لائے۔ پر کچھ دیر بعد ہی جب گارڈز نے سلام کہتے اس کی گاڑی کا دروازہ کھولا تو لائبہ کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ وہ باہر نکلتی بھاگنے لگی، لیکن آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا۔ وہ ڈری سہمی سی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف جا رہی تھی۔ اچانک سے کچھ لڑکے اس کے سامنے آ گئے تو گھبرا کر اس نے راستہ بدل لیا۔ پریشانی سے وہ آگے بڑھ رہی تھی۔ وہ یونیورسٹی میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کے چہرے پر خوف اور دہشت تھی۔ باقی لڑکیاں اور لڑکے ہنستے مسکراتے لطف اندوز ہوتے ہوئے یونیورسٹی آ رہے تھے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ دھیمی دھیمی خون کی بھری ہوا جسم کو طمانینت کا احساس دلا رہی تھی۔ پرندے خوشی سے چہچہاتے موسم سے لطف اندوز ہوتے۔ یونیورسٹی کے اندر ڈھیر سارے درختوں کے قریب چہچہاتے ہوئے چکر لگا رہے تھے۔ ہر کوئی خوش تھا سوائے اس لڑکی کے جس کے چہرے پر نہ جانے کیوں اداسی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنی کلاس میں آ کر سب سے الگ تھلگ ہو کر ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ سب لڑکیوں نے اسے ایک نظر دیکھا۔ ایک لڑکی نے اسے بات چیت بڑھانے کی بھی کوشش کی، مگر اس کا بیزار لہجہ اور کسی بات کا بہت سوچ سمجھ کر صرف مختصر سا جواب دینا انہیں اس لڑکی سے مزید بات چیت آگے بڑھانے میں مشکل ثابت ہوا۔ وہ کافی دیر یوں ہی خاموش بیٹھی رہی تھی۔ کسی نے اس کا نام پوچھا تو اپنا نام لائبہ بتا کر وہ پھر چپ ہو گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد کلاس میں پروفیسر انس آ گئے، جس وجہ سے خاموشی چھا گئی۔ سب لڑکیاں توجہ سے لیکچر لے رہی تھیں، جبکہ لائبہ کسی غیر مرئی نکتے کو دیکھتے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ کلاس میں لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے موجود تھے۔ وہ ایک کونے میں بیٹھی تھی تاکہ کسی بھی لڑکے کی نگاہ اس پر نہ پڑے، کیونکہ وقت نے اسے ڈرپوک بنا دیا تھا۔ اس کے اندر جتنا کانفیڈنس پہلے ہوا کرتا تھا اب اس کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ آخری لیکچر پروفیسر حدید کا تھا۔ ان کے کلاس میں آنے سے قبل ہی لڑکیاں آپس میں ان کے بارے میں بات چیت کرنے لگی۔ یار کیا بتاؤں، حدید سر کی پرسنالٹی اتنی پرکشش ہے کہ مجھے تو کرش ہے ان پر۔ وہ تھوڑے سخت مزاج ہیں مگر اس کے باوجود ان کی شخصیت بہت لاجواب ہے۔ لائبہ کے پہلو میں بیٹھی ہوئی لڑکی نے اپنی سہیلی کو بتایا تھا۔ نہ صرف وہ لڑکی سر حدید کی شان میں قصیدے پڑھ رہی تھی بلکہ ساری لڑکیاں ان کی تعریف کر رہی تھیں۔ ان لڑکیوں کی سر حدید کے بارے میں اتنی تعریفیں سن کر لائبہ کو بھی تجسس ہونے لگا کہ سر حدید میں ایسا کیا خاص ہے جن کے لیے یہ لڑکیاں پاگل ہو رہی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں جب سر حدید کلاس روم میں آئے تو سب لڑکیاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ جب لائبہ کی پہلی نگاہ ان کی طرف اٹھی تو وہ واقعی مبہوت ہو کر رہ گئی۔ ان کی شخصیت بہت سحر انگیز تھی۔ اس کا دل دھک دھک کرنے لگا۔ بیٹھ جائیں، سر حدید نے روبدار لہجے میں کہا۔ ان کے کہنے پر سب لڑکے اور لڑکیاں اپنی کرسی پر بیٹھ گئے۔ صرف چند لمحے ہی لائبہ ان کے سحر میں کھوئی تھی۔ پھر جب اپنی زندگی کی دردناک یادیں اس کے ذہن میں آئیں تو اس کا دل ہر شے سے اچاٹ ہونے لگا۔ سر جھکائے وہ کرسی کے عام رائٹنگ پیڈ پر رکھے ہوئے اپنے رجسٹر کے خالی صفحات کو گھورنے لگی۔ اس کی توجہ کلاس روم سے ہٹ کر اپنے ماضی کی طرف چلی گئی تھی۔ وہ کلاس روم میں واحد ایسی لڑکی تھی جس کی توجہ سر حدید اور ان کے لیکچر پر نہیں تھی۔ لیکچر دیتے ہوئے سر حدید کی نگاہ اچانک لائبہ پر پڑی جو ایک ہی سمت میں بیٹھی تھی۔ صاف ظاہر تھا کہ اس کا کلاس روم میں اور لیکچر کی طرف کوئی دھیان نہیں ہے۔ انہوں نے اسے اس کا نام پوچھا مگر اس کی توجہ صرف اپنے رجسٹر پر تھی۔ وہ کسی گہری سوچ میں مکمل طور پر کھوئی ہوئی تھی۔ اس کے آس پاس کیا ہو رہا تھا اسے کچھ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سر حدید کی آوازیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھیں۔ جب اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ ہوش میں آئی۔
वो घबरा गई। लाइबा, आपसे पूछ रहा हूं मैं, आपकी तवज्जो लेक्चर की जानिब क्यों नहीं? क्या सोच रही हैं आप? सर हदीद मध्यम लहजे में उससे पूछ रहे थे। वो नर्वस होती खड़ी हो गई। सॉरी सर, वो सर हदीद की जानिब देखते माजरत करते हुए बोली। उसी लम्हे सर हदीद के दिल में एक शोर सा बरपा हुआ। इस लड़की की आंखों में नमी देखकर वो हैरान हुए थे। लाइबा की शख्सियत में कुछ अलग जरूर था जिसे उन्होंने महसूस कर लिया था। उन्होंने लाइबा को बिठा दिया, मगर वक्तन फवक्तन वो उस पर एक निगाह डाल रहे थे। आज सारे लेक्चर के दौरान उन्हें वो लड़की क्लास में सबसे अलग नजर आई। उसके अलावा उसकी आंखों में उन्होंने एक दर्द देखा था। उसके चेहरे के तासुरात से भी यूं लग रहा था जैसे वो किसी अजियत में थी। लेक्चर खत्म हुआ तो छुट्टी का टाइम भी हो गया। सब स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी के मेन गेट की तरफ बढ़ रहे थे। लाइबा हाथ में रजिस्टर लिए कंधे पर बैग लटकाए क्लास से निकल रही थी। सर हदीद की निगाहों ने उसका दूर तक पीछा किया था। जब वो घर पहुंची तो ताई ने करख्त निगाहों से उसे घूरा। दोपहर के 2 बजने वाले थे। घर में हर चीज बेतरतीब पड़ी थी। यूं लग रहा था उसके जाने के बाद किसी ने भी कोई चीज उठाकर उसकी जगह पर रखने की कोशिश नहीं की। घर की सफाई भी नहीं हुई थी। आ गई मनहूस लड़की, अब जल्दी से हाथ पैर चला और सफाई कर। अगर रोज रोज घर की यही उजड़ी हालत रही ना तो तुझे यूनिवर्सिटी नहीं जाने दूंगी, समझी? वो सख्त लहजे में कहती हुई खुद आराम करने चली गई। उनके जाते ही उनकी बेटियां भी महारानी बनकर अपने कमरे में चली गईं, जबकि लाइबा अपनी जगह वैसे की वैसे खड़ी थी। आज ताई ने उसे मनहूस कहकर उसके पुराने जख्म फिर से उधेड़ दिए थे। उसे ताई की बातों से हमेशा तकलीफ होती थी, खास तौर पर जब वो उसे मनहूस कहती थी तो इसके दिल को बहुत दुख पहुंचता था। यूं लगता था शायद वो अगला सांस नहीं ले सकेगी। वो दिल महसूस कर रह जाती, चाहकर भी वो ताई को आगे से जवाब नहीं दे सकती थी। उनके सामने कुछ बोलना बेघर हो जाने के मुतरादिफ था, क्योंकि ताई ने उसे हमेशा वाज़ेह अल्फाज में ये समझा दिया था कि ये घर उनके शौहर का था। अगर उसने यहाँ उनके उसूलों के मुताबिक जिंदगी ना गुजारी तो वो उसे घर से निकाल देंगी। आंसू साफ करती वो अपने कमरे में चली गई। बैग और रजिस्टर बेड पर रखा और फिर घर की सफाई करने लगी। उसने शाम तक पूरा घर चमका दिया था और खाना भी बना दिया था। उसकी 3 हमउम्र कजन्स अब मजे से आराम करते खाना खा रही थी और वो दिल ही दिल में रो रही थी कि इस घर के कामों की जिम्मेदारी क्या सिर्फ उस अकेली लड़की पर थी। उसकी बाकी कजन्स ने तो पढ़ाई छोड़ दी थी और घर में फारिग रहती थी, मगर मजाल था वो किसी काम को भी हाथ लगाती। उसने सर झटका और अपना खाना ट्रे में रखकर अपने कमरे में आ गई। वो जानती थी जितना उन सब लोगों के बारे में सोचेगी उतनी ही उसे तकलीफ होगी। खाना खाकर उसने थोड़ी सी पढ़ाई की और फिर सोने के लिए लेट गई। वो जानती थी हमेशा की तरह आज भी उसे जल्दी नींद नहीं आएगी। दर्दनाक माजी और माजी की यादें उसका पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। लाइबा को यूनिवर्सिटी जाते हुए 2 महीने हो चुके थे और इन 2 माह में उसके रवैये में तब्दीली नहीं आई थी। वो अक्सर क्लासरूम में गुमसुम हो जाती, अपनी सोच में मगन रहती थी, किसी भी लड़की से फालतू बात नहीं करती थी। सर हदीद ना चाहते हुए भी लाइबा में एक कशिश महसूस कर रहे थे और सख्त मिजाज रखने के बावजूद वो ये बात जानना चाहते थे कि लाइबा की उदासी की वजह क्या है। उन्हें चेहरे पढ़ने आते थे, सो इतना तो वो अंदाजा लगा चुके थे कि लाइबा के साथ कोई ना कोई संगीन मसला तो जरूर है जिसने उसकी शख्सियत को इतना उदास बना दिया है। कई बार वो सोचते कि उससे बात करें, मगर फिर इरादा तर्क कर देते कि किसी स्टूडेंट से उन्हें इतना फ्री होने की जरूरत नहीं। आज छुट्टी के वक्त यूनिवर्सिटी के कुछ लड़के लाइबा पर फिक्रे कस रहे थे। वो उसे तंग कर रहे थे। लाइबा डरकर वहां से भागने लगी। वो बहुत तेज रफ्तारी से भाग रही थी। उसके इसी डर की वजह से यूनिवर्सिटी के कुछ बिगड़े अमीरजादे उसे खौफजदा करने की कोशिश करते थे। आज भी उन्होंने लाइबा का रास्ता रोका तो वो डर गई और उसका जर्द पड़ता रंग देखकर वो हंसने लगे। लाइबा भागने में कामयाब हो चुकी थी।
मगर वो नहीं जानती थी आज उसका यूं भागना उसके लिए एक नई अजियत का बाब खोलने वाला था। वो जो अंधाधुंध भाग रही थी, अचानक ही यूनिवर्सिटी से निकलने के बाद किसी लड़के से टकरा गई। वो लड़का कोई आम लड़का नहीं था। शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन का जिद्दी मगरूर बेटा शाहरून खानजादा था, जिसकी असल शख्सियत से कम ही लोग वाकिफ थे। वो एक जरूरी मीटिंग के सिलसिले में ऑफिस जा रहा था, मगर रास्ते में उसकी गाड़ी खराब हो गई। उसका ड्राइवर और मैकेनिक गाड़ी चेक कर रहा था, जबकि वो एक साइड पर खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। जब कोई लड़की उससे टकरा गई तो उसे इंतहा का गुस्सा चढ़ा, क्योंकि उसका फोन उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरा था। लाइबा भी डर गई और उसने झुककर फोन उठाया। आई एम सॉरी, उसने माजरत करते झुककर फोन उठाया और उससे पकड़ाया। फोन पकड़ते हुए शाहरून खानजादा का हाथ उसकी उंगलियों से टच हुआ था। वो बिना पलकें झपकाए लाइबा को देख रहा था। हुस्न उसकी कमजोरी थी और आज एक खूबसूरत लड़की खुद चलकर उसके पास आई थी। पहली ही निगाह में शाहरून खानजादा उस पर फिदा हो गया। जो ही लाइबा वहां से जाने लगी तो उसने उसका बाजू थाम लिया। रुको, अपना नाम बताकर जाओ, उसने रोबदार लहजे में कहा तो लाइबा की रूह फना हो गई। वो खामोशी से डर कर उसे देखने लगी, फिर आसपास लोगों को देखती कि कहीं लोग उसे देख तो नहीं रहे। डर के मारे उसने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उसे लग रहा था ये शख्स गुस्से में उससे उसका नाम पूछ रहा है, क्योंकि इसने उसका फोन जो गिरा दिया था, जिस वजह से उसके आईफोन का ग्लास प्रोटेक्टर टूट चुका था। लाइबा, सॉरी, मैं गलती से आपसे टकरा गई, मैं आपको नुकसान के पैसे दे देती हूं, वो डर से रोते हुए बोली और अपने कॉलेज बैग की जिप खोलकर पैसे तलाशने लगी। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मेरे पास इतना पैसा है कि इस वक्त खड़े खड़े मैं यूनिवर्सिटी खरीद सकता हूं, उस लड़के ने मगरूर अंदाज में कहा। लाइबा ने अपने बैग की जिप बंद कर दी। इससे कबल के शाहरून उस लड़की से उसके बारे में मजीद मालूमात पूछता, ड्राइवर और मैकेनिक उसके पास आ गए, जिस बात का फायदा उठाते हुए लाइबा वहां से भाग गई। उसके चले जाने पर शाहरून को इंतहा का गुस्सा चढ़ा। गाड़ी ठीक हो गई है सर, मैकेनिक ने कहा। इस लड़की का पीछा करो ड्राइवर, शाहरून खानजादा ने दूर जाती लाइबा की तरफ इशारा करते हुए ड्राइवर से कहा और फौरी गाड़ी में बैठ गया। ड्राइवर लाइबा का पीछा कर रहा था। थोड़ी ही देर में शाहरून खानजादा को उसके घर का अंदाजा हो गया, जो इस मिडिल क्लास इलाके में था। ठीक है, अब गाड़ी ऑफिस की तरफ मोड़ लो, उसके दूसरे हुक्म पर ड्राइवर ने गाड़ी घुमा ली, जबकि शाहरून खानजादा लाइबा के बारे में सोचने लगा कि किस तरह उसे हासिल कर सकेगा। उसने आज तक बहुत खूबसूरत लड़कियों से दोस्तियां की थी। लाइबा खूबसूरत थी, मगर उसमें एक कशिश भी थी, जिस वजह से शाहरून खानजादा बेचैन हो गया था। जब वो यूनिवर्सिटी से वापस आई तो घर के काम निपटा लिए। फिर ताई ने मीठे लहजे में उससे बातें करना शुरू कर दी। कुछ आराम कर लो, थक गई होगी। ताई की बात सुनकर वो बेयकीन होकर उन्हें देखने लगी। उनका ये रूप लाइबा के लिए नया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इस कदर प्यार से भी उससे बात कर सकती हैं। उसे अपनी ताई के नरम रवैये के पीछे की असल वजह उस वक्त समझ आई जब उन्होंने कहा, अपने सोने की वो अंगूठी ले आओ, घर में पैसों की बहुत कमी हो गई है, राशन भी डालना है। और कुछ दिन बाद उन्होंने मायदा के रिश्ते के हवाले से दूसरे शहर जाना था, जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे। ये सुनकर लाइबा दंग रह गई। उसकी आंखें नम होने लगी। उसके लिए वो सोने की अंगूठी बहुत कीमती थी, इसलिए नहीं कि वो महंगी थी, बल्कि इसलिए कि वो उसकी माँ की निशानी थी, जो उसके बाप ने कुछ साल पहले उसे तोहफे के तौर पर दी थी। वो अंगूठी इसके लिए बहुत खास थी। उसने इस अंगूठी को बेहद उनसियत से अपने पास रखा था और खुद से ये वादा भी किया था कि वो इस अंगूठी को अपने माँ बाप की निशानी समझकर हमेशा अपने पास संभाल कर रखेगी। मगर ताई की निगाह उसकी अंगूठी पर पड़ चुकी थी, इसीलिए वो उसे हासिल किए बिना चैन से बैठने वाली नहीं थी। ताई,
वो अंगूठी अब्बू ने मुझे दी थी। मेरे पास उनकी वाहिद यही निशानी है। प्लीज उसे मेरे पास रहने दें, वो इल्तिजा करते हुए बोली। ये एहसास ही उसकी रूह को छलनी कर रहा था कि उसके माँ बाप की निशानी कोई उससे छीनना चाह रहा है। इनकार सुनकर ताई हमेशा की तरह उस पर अपने एहसानात जतलाने लगी और जबरदस्ती उससे अंगूठी छीन ली। वो रोती रह गई, मिन्नतें और फरियादें करती रह गई, मगर ताई ने हमेशा वही किया जो वो चाहती थी। अंगूठी लेकर वो सुनार के पास चली गई और उसे बेचकर उनके पास तकरीबन 2 लाख रुपए आ चुके थे। दुख से लाइबा सारी रात सो नहीं सकी थी। यूनिवर्सिटी का वक्त भी हो चुका था, लेकिन उसका बिल्कुल जाने का दिल नहीं था। मगर फिर उसने सोचा वो आज यूनिवर्सिटी से छुट्टी नहीं करेगी। अगर वो घर रही तो ताई के जुल्मों सितम याद आते रहेंगे और वो इसी तरह रोती रहेगी। इसलिए अपने दिल को मारती वो सिसकते हुए उठ बैठी और यूनिवर्सिटी चली गई। ना सिर्फ घर में बल्कि यूनिवर्सिटी में भी अपनी कीमती अंगूठी के बारे में सोचते हुए उसकी आंखें नम हो रही थीं। क्लास की लड़कियां बार बार उसे पूछ रही थीं कि वो क्यों रो रही है, मगर उसने कुछ नहीं बताया। वो खुद पे सिमट कर रहने वाली लड़की थी। अपने दुख, दर्द या खुशियां किसी के साथ शेयर नहीं करती थी। सर हदीद क्लास में आ चुके थे। लेक्चर के दौरान उन्होंने अपनी आंखों के सामने लाइबा की बड़ी बड़ी आंखों से आंसुओं को बहते देखा, जिसे वो बार बार साफ कर रही थी। उसे इस हालत में देखकर सर को कुछ होने लगा। जाने क्यों वो उसकी तरफ माइल हो रहे थे। लाइबा, लेक्चर के बाद मेरे डिपार्टमेंट में आइएगा, मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। सर हदीद जाने से पहले उसे कहकर गए थे और वो नर्वस सी हाथों की उंगलियां मरोड़ती रह गई। छुट्टी होने का वक्त हो चुका था। वो अपना बैग संभालती उठी और सर हदीद के डिपार्टमेंट में चली गई। वो अपने रूम में अकेले थे। उन्होंने उसे अपने सामने मौजूद कुर्सी पर बैठने का इशारा दिया। वो झिझकते हुए बैठ गई। मैंने नोट किया है, जब से आप यूनिवर्सिटी आई हैं आपके चेहरे पर एक उदासी है, दुख और दर्द है, और आज आपका क्लास में बार बार आंसू साफ करना जाहिर करता है कि आप अपनी जिंदगी में किसी दुख से गुजर रही हैं। आप मुझसे ये शेयर कर सकती हैं। उस्ताद होने के नाते मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। सर हदीद बहुत सोच समझ कर बोल रहे थे। उनका यूं इसकी फिक्र करना लाइबा को एक तमानियत भरा एहसास दे गया कि कोई तो था जो उसकी फिक्र कर रहा था, वरना वो तो बस एक ऐसी जिंदगी गुजार रही थी जिसमें किसी को उसकी कदर और फिक्र नहीं थी। सर, कल मेरी ताई ने मुझसे जबरदस्ती मेरी अंगूठी लेकर बेच दी। वो मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी थी मेरे पास। वो इतना बताकर रोने लगी तो वो उसे परेशानी से देखने लगे, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम था कि उसके माँ बाप हयात नहीं है। ओहो, आई एम वेरी सॉरी टू हियर दैट। वो वाकई उसका दुख महसूस कर चुके थे। आपके पेरेंट्स की डेथ कैसे हुई? उन्होंने अगला सवाल किया ताकि उसकी अजली उदासी की वजह जान सकें, मगर वो नहीं जानते थे कि उनके इस सवाल ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। वो उसके चेहरे को गौर से देख रहे थे। लाइबा की आंखें झुकी हुई थी और वो अपने आंसू जब्त करने की कोशिश में थी। मेरी मनहूसियत की वजह से उनकी डेथ हो गई। आई एम सॉरी, मुझे घर जाना है। वो अचानक फूट फूट कर रोते हुए बोली और अपने आंसू छुपाती वहां से उठकर चली गई। जबकि सर हदीद उसके अल्फाज सुनकर दंग रह गए। उनके अंदर मजीद तजस्सुस पैदा हुआ कि वो इस लड़की को जान सके। लाइबा डिपार्टमेंट से आंसू पोंछते हुए निकली थी। आज शुक्र था कि वो लड़के नहीं थे जो उसे तंग करते थे। वो घर आई तो उसने देखा उसकी ताई और उनकी बेटियां फैसलाबाद जाने की प्लानिंग कर रही थी, क्योंकि उनका ननियाल फैसलाबाद रहता था। ताया भी फैसलाबाद में होते थे। वो अपने दोस्त के साथ छोटा मोटा कारोबार कर रहे थे। लाइबा को सुनकर ही खौफ आने लगा कि किस तरह वो 3 दिन घर पर अकेली रहेगी। सुनो लड़की, हमारे जाने के बाद घर का ख्याल रखना। वापस आऊं तो घर की हालत उजड़ी हुई ना लगे मुझे, और ना तुम हमारे जाने के बाद अय्याशियों में लग जाना।
कि महारानी बनकर उठो और बिस्तर पर पड़ी रहो या पैसे खर्च करती रहो। वक्त पर उठकर घर साफ करना। समझ आया तुम्हें? वो जाने से पहले उसे सख्ती से कह रही थी और वो महज जज्बात में सर हिला रही थी। शारून आज पूरे घर में अकेला था। घर वाले आउटिंग पर गए हुए थे और वो घर में अकेला बैठा बोर हो रहा था। इसलिए उसने उस खूबसूरत सी लड़की लाइबा से मिलने का प्लान बनाया। थोड़ी ही देर के बाद वो उसके घर के बाहर पहुंच चुका था। जो ही उसने बेल बजाई और लाइबा ने दरवाजा खोला तो वो दंग रह गई, क्योंकि इस लड़की को वो पहचान चुकी थी कि ये वही था जिससे वो ना सिर्फ टकराई थी बल्कि उसके फोन का प्रोटेक्टर भी टूट गया था। वो डर गई कि इस लड़के के उसके घर आने के पीछे क्या वजह हो सकती है, और सबसे अहम बात कि उसे इसका घर का कैसे पता चला। वो घर पर कोई नहीं है। क्या काम है आपको? वो जबान तर करती थूक निकलते बोली। उसे डर था कि अगर मोहल्ले में किसी ने इस लड़के को देख लिया तो शिकायत ताई तक पहुंच जाएगी और फिर ताई उसकी खाल उधेड़ देंगी। शारून खानजादा जैसे अपने बाप की दौलत और जायदाद और पैसे पर नाज था। वो हर किसी को अपने जूते की नोक पर रखता था। लड़कियां उस पर मरती थीं और ये लड़की उल्टा उसे घर के अंदर भी नहीं आने दे रही थी। उसे ये बात अपनी अना पर जरब लगाती महसूस हुई, इसलिए वो खुद से दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ गया। वैसे काफी छोटा घर है तुम्हारा, लेकिन तुम्हारा चेहरा देखकर मुझे लगा नहीं था तुम मिडिल क्लास हो। इस घर जितने तो हमारे नौकरों के घर होते हैं। वो घर का जायजा लेते हुए बोला तो वो उसकी बात और उसका अंदाज देखकर दंग रह गई। आप घर के अंदर क्यों आए हैं और क्या काम है आपको? जो बात है घर के बाहर रहकर करें। लाइबा को शुरू से ही शो ऑफ करने वाले लोग पसंद नहीं थे, और ये लड़का भी ऐसा कि पहली मुलाकात में भी अपनी दौलत का रोब झाड़ रहा था, और आज भी। जब शारून खानजादा ने उसका ये रूखा लहजा महसूस किया तो वो चेहरे के तासुरात सर्द करता उसके करीब आने लगा। देखो, सिंपल सी बात है, तुम मुझे पसंद आ गई हो और मैं चाहता हूं तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ। बदले में तुम्हें अच्छे पैसे दूंगा। आई नो मिडिल क्लास होने की वजह से तुम्हारी काफ़ी ख्वाहिशात होंगी जो पूरी नहीं हो सकी होंगी, मगर मैं तुम्हें तुम्हारी ख्वाहिश की हर चीज़ दिला सकता हूं। वो उसके चेहरे को गहरी निगाहों से देखता हुआ बोला। उसके अल्फाज सुनकर लाइबा थर थर कांपने लगी। वो लड़का इससे जैसी बातें कर रहा था वो डर गई थी। देखें, मैं एक शरीफ लड़की हूं, इसलिए आप अपने जैसी किसी लड़की से राब्ता करें, मुझसे नहीं, क्योंकि मुझे आप जैसे लड़कों की या उनकी 2 टके की दौलत की कोई ज़रूरत नहीं। वो हिम्मत करके उसे इनकार करती हुई बोली, जबकि उसके अल्फाज ने शारून की अना को काफ़ी ठेस पहुंचाई थी। अगर ऐसा है तो देखते हैं कब तुम मुझ जैसे अमीर, काबिल और परफेक्ट इंसान से दूर भागती हो। वो आंखों पर सनग्लासेस लगाते बोला और घर से चला गया। अब वो इस लड़की को चैलेंज दे चुका था और इसके दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि उसने इस लड़की को काबू में कर कर अपने आगे झुकाना है, जो खुद को बहुत शरीफ समझ रही थी। जिस शराफत पर तुम्हें गुरूर है ना मिस लाइबा, वही गुरूर तोड़ दूंगा मैं। वो दिल में उसे मुखातिब करते हुए बोला। जो कोई उसे किसी चीज से इनकार करता था तो शारून उसे अपनी तौहीन समझता था। खास तौर पर अपने से निचले तबके के लोगों से उसे एक खास चिढ़ होती थी जब वो उससे या उसकी दौलत से मुतासिर नहीं होते थे। अब बात एक लड़की की आ गई थी जो उससे कमतर थी, मगर उसका लहजा बहुत मजबूत था, इसलिए उसने दिल में इरादा कर लिया वो ऐसे हालात पैदा करेगा कि लाइबा उसके आगे झुकने पर मजबूर हो जाएगी। शारून के जाते ही उसने तेजी से दरवाज़ा बंद किया। उसका दिल तेज तेज धड़क रहा था। वो बहुत डर गई थी। उसे इतना तो अंदाज़ा हो गया था कि वो लड़का एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा था, मगर वो ये नहीं जानती थी कि इस लड़के की वजह से उसे आगे कितनी मुश्किलात झेलनी पड़नी थी। रास्ते में शारून को अपने डैड का फ़ोन आ गया।
وہ اسے ارجنٹ کراچی کسی میٹنگ کے لیے بھیج رہے تھے۔ وہ گھر چلا گیا اور وہیں سے کراچی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ لائبہ کو سر حدید کی اس کی فکر کرنے کے بعد سے ان کے لیے اپنے دل میں ایک الگ جذبہ محسوس ہو رہا تھا۔ سر حدید بھی وقتاً فوقتاً اس کی طرف نگاہ ڈال لیا کرتے، اور جب لائبہ بھی ان کی طرف دیکھتی تو اس کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکتا۔ ایک دن اس نے بے ساختہ اپنی کلاس کی لڑکی سے سر حدید کے بارے میں مزید معلومات پوچھی۔ اس نے بتایا کہ سر حدید 32 سال کے ہیں اور ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی۔ پہلے وہ بزنس کرتے تھے، مگر پچھلے 3 سالوں سے وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے۔ جب لائبہ نے یہ سنا کہ ان کی ابھی شادی نہیں ہوئی تو جانے کیوں اس کے چہرے پر پہلی مرتبہ ایک دل فریب سی مسکان آ گئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب سر حدید کی نگاہ اس کی طرف اٹھی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ انہوں نے آج اسے پہلی مرتبہ مسکراتے دیکھا تھا اور اس کی اس ہنسی میں وہ مکمل طور پر کھو گئے۔ جب شارون اپنے کام سے نپٹ کر گھر واپس آیا تو اسے لائبہ کی یاد آنے لگی۔ اب وہ اسے پسند کرنے سے زیادہ اسے نیچا دکھانے میں زیادہ دلچسپی لے رہا تھا۔ اس نے اپنے ملازموں کو حکم دیا کہ وہ لائبہ کو اس کے گھر سے لے کر آئیں۔ اس کے ایک حکم پر وہ گھر سے چلے گئے اور جب لائبہ کو لینے آئے تو وہ دنگ رہ گئی۔ تائی بھی حیرت بھری نگاہوں سے ان آدمیوں کو دیکھ رہی تھی۔ کہاں لے جا رہے ہو اسے تم لوگ؟ انہوں نے غصے میں پوچھا۔ لیکن جب انہوں نے تائی کو ایک نوٹوں کی گڈی دی اور کہا ہمارے مالک نے لائبہ کو یاد کیا ہے، اگر آپ اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں گی تو شارون سر آپ کو انعام دیا کریں گے۔ یہ سنتے ہی تائی کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دولت نے انہیں اندھا کر دیا اور وہ لائبہ کو ان کے ساتھ بھیجنے پر راضی ہو گئی۔ لائبہ کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں کہ اس کی تائی اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی تھی۔ وہ چیختی رہی مگر وہ آدمی اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے اپنے ساتھ لے آئے اور شارون کے آگے پیش کرتے ہوئے انہوں نے اسے بتایا کہ لائبہ کی تائی پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور انہوں نے آسانی سے اسے ان لوگوں کے ساتھ بھیج دیا۔ یہ سن کر شارون سگریٹ سلکاتا ہوا ہنسنے لگا۔ پیسہ غریب لوگوں کی کمزوری ہوتی ہے۔ تو مس لائبہ، اب تو تم راضی ہو میری پیشکش قبول کرنے پر، کیونکہ اب تو تمہاری تائی کو بھی کوئی اعتراض نہیں۔ پیسوں نے ان کا منہ بند کر دیا ہے، وہ طنز کرتے ہوئے بولا، کیونکہ اس نے دنیا دیکھ رکھی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ کچھ مڈل کلاس لوگ پیسہ دیکھ کر بہت کچھ ناجائز کر جاتے تھے۔ لائبہ اس کی بات سن کر رونے لگی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو شارون نے اسے دبوچ لیا اور اپنے کمرے میں لے آیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میڈ اس کے لیے کھانا لے آئی۔ لائبہ بے تحاشا رو رہی تھی۔ تائی نے آج اس کے ساتھ یہ سب کر کے اچھا نہیں کیا تھا۔ کیوں رو کر اپنی انرجی ضائع کر رہی ہو؟ میں تو صرف تم سے دوستی کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بدلے پیسے بھی دوں گا۔ وہ اس کے آنسو دیکھ کر اس کے قریب ہو گیا اور اس کا چہرہ تھام کر اس کے آنسو صاف کرنے لگا، جس کے بعد وہ خوف سے کانپ اٹھی۔ شارون کی باتوں نے اسے ڈرا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس کے آدمی اسے گھر چھوڑ گئے تھے اور وہ ہنوز رو رہی تھی۔ تائی نے اسے مشکوک بھری نگاہوں سے دیکھتے اس لڑکے شارون کے بارے میں پوچھا تو اس نے روتے ہوئے انہیں سب بتایا کہ کس طرح وہ لڑکا اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ دیکھو لائبہ، یہ بڑا اچھا موقع ہے پیسہ حاصل کرنے کا۔ تمہاری شادی کی عمر ہے اور تمہاری 3 کزنز کی بھی شادی ہونی ہے جس کے لیے پیسہ چاہیے، تو تم اس لڑکے کو اپنے جال میں پھنساؤ، اپنا مزید دیوانہ کرو کہ وہ تم سے شادی کرنے پر مجبور ہو جائے اور ہم سب کی قسمت بدل جائے۔ لائبہ نے اپنی چچی کے منہ سے یہ سب باتیں سنی تو اس کے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی تائی اسے ایسا کہیں گی۔ وہ کمرے میں آتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آج بھی یونیورسٹی میں وہ اداس تھی، کسی گہری سوچ میں گم، اذیت کے سمندر میں ڈوبی ہوئی۔ جب بھی سر حدید اسے دیکھتے ان کا دل کرتا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کے دکھ سمیٹ لیں اور اسے خوشیاں دے دیں۔
कुछ ही दिनों में लाइबा भी सरहदीद के अंदर कशिश महसूस करने लगी। आज फ्री टाइम में सरहदीद ने उसे अपने रूम में बुला लिया। आज जिंदगी में पहली मर्तबा लाइबा ने उन्हें अपनी दुख भरी माजी की दास्तान सुनाई थी, जिसे वो बहुत गौर से सुन रहे थे। लाइबा की पैदाइश के वक्त उसकी माँ इस दुनिया से चल बसी थी और उसके अब्बू एक खतरनाक बीमारी में मुब्तला हो गए, जिसके बाद खानदान के लोग उसे मनहूस समझने और कहने लगे। बचपन में तो उसे ये बातें समझ नहीं आती थी, लेकिन जूं जूं बड़ी हुई उसे ये सब तकलीफ देने लगा। क्योंकि उसकी माँ मर चुकी थी, इसीलिए वो अपनी ताई के टुकड़ों पर पली थी। अब्बू सारा दिन काम पर होते थे और ताई पीछे से उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ती थी। वक्त गुजरता था और फिर उसके अब्बू ने उसकी जल्दी शादी करने का फैसला किया और यूं खानदान के एक लड़के से उसका रिश्ता तय हो गया। मैट्रिक की फौरी बाद उसकी शादी थी। लाइबा इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे आगे पढ़ना था। मगर अब्बू ने कहा, बेटा मैं बीमार हूं, पता नहीं कब मेरा बुलावा आ जाए। मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में अपने घर का होता देखना चाहता हूं। ये सुनते ही वो रोते हुए अपने बाप के गले से लग गई। वो सिर्फ उनकी खुशी की खातिर वो शादी करने पर राजी हो गई। मगर ऐन निकाह से एक दिन पहले उस लड़के का रोड एक्सीडेंट हो गया और उसकी मौत हो गई, जिसके बाद सब लाइबा को मनहूस कहने लगे। वो बहुत दुखी हो गई थी। सबकी बातों ने उसे तोड़ दिया था। वो दुनिया से कट कर रह गई थी। उसे लग रहा था सब खत्म हो गया है। कॉलेज जाती मगर दिल ना लगता, लेकिन वो सिर्फ इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि उसके अब्बू को शौक था कि वो बहुत ज्यादा पढ़े। उसके अब्बू ने उस मुश्किल वक्त में उसे संभाला था। तो 2 साल बाद उनकी भी डेथ हो गई और वो तन्हा रह गई। उसकी पढ़ाई से भी दिल उठ गया था। उसके बावजूद उसमें खुद एतमादी की बहुत कमी हो गई थी। वो डरी रहती थी और वाकई खुद को मनहूस समझती थी। उसने कॉलेज से बीए करके आगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, क्योंकि जितना वो घर पर रहती उसे माजी के बारे में सोचकर डिप्रेशन होने लगता था। एक बार तो वो खुदकुशी करने का सोच रही थी। यूनिवर्सिटी आने के बाद से उसका ध्यान कुछ हद तक माजी से हट चुका था। आज भी वो अपने खानदान में मनहूस लड़की मशहूर थी। अपने माजी के बारे में बताते हुए वो नाजुक सी लड़की रो पड़ी। सरहदीद को उस पर काफी तरस आया था। उन्होंने बेख्तियार उसका हाथ थाम लिया। मैं आपके साथ हूं लाइबा, आप कभी खुद को मनहूस मत समझिएगा। आप बहुत खास हैं और अब मैं आपके साथ हूं। आपको कभी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइएगा। वो उसके हाथ को नरमी से थाम चुके थे और ये लम्स लाइबा को बहुत खास लगा था। सरहदीद उसके दिल में जगह बना चुके थे और वो उनके लिए अपने दिल में मोहब्बत के उभरते जज्बात महसूस करने लगी थी। वक्त गुजरने के साथ साथ वो दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला हो चुके थे। सरहदीद अक्सर उससे फ्री टाइम में बहुत सी बातें करते और जब लाइबा खुलकर बोलती तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। लाइबा अब दिन रात उनके बारे में सोचकर खुश रहने की कोशिश करती। सरहदीद के दिमाग में भी आजकल सिर्फ लाइबा ही थी। उन्होंने जिंदगी में कभी किसी लड़की के लिए ऐसे जज्बात महसूस नहीं किए थे, मगर लाइबा में उन्हें कुछ खास महसूस हुआ था। इसीलिए वो उसके बारे में ये सोचने लगे कि वो उससे शादी करके हमेशा के लिए उसे अपने पास ले आएंगे और उसका हर दुख दर्द खुशियों में बदल देंगे। शारून उसके लिए एक परेशानी बनता जा रहा था। ताई तो उसे देखकर उसकी दीवानी हो चुकी थी और लाइबा को भी तरगीब देती थी कि वो शारून के करीब होने की कोशिश करे ताकि वो उन्हें पैसे देता रहे। इस बारे में लाइबा ने सरहदीद से कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। उसे शारून जैसे लड़कों से नफरत थी और अब उसे इतना तो अंदाजा हो चुका था कि वो अपने बाप की दौलत पर अय्याशी करने वाला एक बिगड़ा हुआ और खतरनाक इंसान था, जो अपने सिवा हर इंसान को कमतर समझता था। आज जब उसके आदमी लाइबा को लेने आए तो वो साफ इनकार कर गई और शारून के बारे में नफरत अंगेज बातें की।
مگر اس کی سزا اسے یوں ملی کہ اگلے ہی دن شارون خانزادہ بذات خود اسے اس کے گھر سے زبردستی اپنے گھر لے آیا۔ لائبہ روتی روتی رہ گئی۔ بہت غرور ہے نا، اور اکڑ ہے تم میں، تمہاری اتنی ہمت کہ تم نے مجھے ایک بے غیرت اور بے شرم انسان کہا۔ وہ نفرت سے لائبہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، کیونکہ لائبہ نے اس کے بھیجے ہوئے ملازموں کے سامنے شارون کے بارے میں ایسی باتیں کہی تھی جو جھوٹ نہیں بلکہ سچ تھی، اور یہ سچ اسے بہت ناگوار گزرا تھا۔ وہ غصے میں لائبہ کے قریب آیا اور اس کے سر سے دوپٹہ کھینچ کر اتارا۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ غصے سے بولتی ڈر کے مارے پیچھے ہٹنے لگی۔ میں تمہیں آج یہ احساس دلانا چاہتا ہوں کہ تم میری نظر میں صرف ایک کم حیثیت لڑکی ہو۔ تم جیسی مغرور لڑکیوں کا غرور توڑنا مجھے بہت پسند ہے۔ وہ غصے سے سرخ آنکھیں لیے بولا اور اس کے قریب آنے لگا۔ اچانک لائبہ کا ہاتھ بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھے گلدان سے ٹکرایا تو وہ خود کو بچانے کی خاطر اس نے گلدان اٹھا کر اس کے سر پر پوری قوت سے مارا، مگر شارون کو زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی کیونکہ وہ وقت پر اس کا ہاتھ تھام چکا تھا۔ البتہ اسے درد محسوس ہوا تھا۔ اب تو اس کی حرکت پر شارون کا خون کھول اٹھا اور اس نے ایک تھپڑ لائبہ کے چہرے پر رسید کیا۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گر گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے جانے دو پلیز، وہ اس کی منت کرتے اٹھ گئی۔ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، اس کی سزا تمہیں آج ہر صورت ملے گی۔ وہ جنون سے کہتا ہوا اسے بیڈ پر دھکا دے چکا تھا۔ اس سے قبل کہ وہ لائبہ پر جھکتا اس نے اپنے ناخن اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ وہ تکلیف سے اسے فوری دور ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے دوبارہ قابو میں کرتا وہ وہاں سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ پکڑو اسے، جانے مت دینا اسے، آج ہر صورت اس سے بدلہ لے کر رہوں گا، وہ چیخ کر بولا۔ اس سے پہلے کہ اس کے ملازم اسے پکڑتے وہ گھر کے پچھلے دروازے سے بھاگنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ اس کا دوپٹہ بھی شارون خانزادہ کے کمرے میں گر گیا تھا۔ وہ خود کو بے حجاب محسوس کرتی بے بسی سے رونے لگی۔ شارون خانزادہ کے آدمی اس کے پیچھے بھاگ رہے تھے مگر وہ بھی ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ رات کا وقت تھا، یہ سڑک کافی سنسان تھی۔ وہ تیزی سے بھاگتی کافی دور آ گئی اور اب وہ لوگ اس کا گاڑی میں پیچھا کر رہے تھے۔ لائبہ کو اس وقت اپنی عزت کی زیادہ پرواہ تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، وہ روتے ہوئے دعا کر رہی تھی۔ اسے راستے کا کوئی علم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اچانک وہ ایک گاڑی کے سامنے آ گئی۔ اگر گاڑی کے اندر موجود شخص بریک نہ لگاتا تو لائبہ اس سے بری طرح ٹکراتی۔ لائبہ موقع کا فائدہ اٹھا کر اس گاڑی میں بیٹھے انسان سے مدد طلب کرنے کا ارادہ کر کے ونڈو کی جانب آئی، مگر اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا جب اس نے دیکھا گاڑی میں کوئی اور نہیں بلکہ سر حدید تھے۔ اس نے اسی پل اللہ کا ڈھیروں شکر ادا کیا کہ انہوں نے اسے اس کی مدد کو بھیجا۔ سر میری مدد کریں، میرے پیچھے شارون خانزادہ کے لوگ پڑے ہیں، پلیز، لائبہ گاڑی کے سامنے آتی خوفزدہ سی بولی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر خود سر حدید بھی دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے فوری گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ جس بات نے سر حدید کو چونکایا تھا وہ یہ تھی کہ اس نے شاہرون کا نام لیا تھا۔ لائبہ سب خیریت ہے؟ آپ اس وقت یہاں کیا کر رہی تھی اور شاہرون کے بارے میں کیا کہہ رہی تھی؟ اس نے گاڑی کی رفتار تیز کرتے پوچھا تو اس نے روتے ہوئے سر حدید کو شاہرون خانزادہ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح اس کی شاہرون سے پہلی ملاقات ہوئی، جس کے بعد وہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور آج تو حد ہی ہو گئی کہ وہ اس کی عزت لوٹنے لگا۔ جب سر حدید نے یہ سب سنا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ ضبط سے بیٹھا رہا۔ شاہرون نے جتنی بھی آپ کو تکلیف پہنچائی ہے اسے حساب دینا ہوگا۔ میں آپ کے ساتھ ہوں، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، سر حدید عجیب سے لہجے میں بولے۔ لائبہ نے آنسو صاف کرتے سیٹ کی پشت سے سر لگا لیا۔ سر حدید کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ احساس اسے اشتعال دلا رہا تھا
कि उसकी मोहब्बत पर किसी ने बुरी निगाह डालने की कोशिश की। लाइबा सरहदीद के साथ गाड़ी में बैठी खुद को महफूज समझ रही थी, पर जान निकलने लगी जब उसने गाड़ी एक आलीशान बंगले के अंदर ली जिस पर शाहरून खानजादा लिखा था। ये उसके घर की फ्रंट साइड थी, वही घर जहां से वो अपनी इज्जत बचा कर निकली थी। अगर मेन गेट से वो भागती तो शायद इस वक्त शाहरून के मुलाजिम उसे पकड़ने में कामयाब हो जाते, मगर उसने पिछले दरवाजे का सहारा लिया था। शाहरून का घर एक बार फिर अपने सामने देखकर वो चिल्लाने लगी, डर कर पूछने लगी कि वो इस खतरनाक शख्स को कैसे जानते हैं और उससे यहां क्यों लाए हैं। हदीद कुछ ना बोला, पर कुछ देर बाद ही जब गार्ड्स ने सलाम कहते उसकी गाड़ी का दरवाज़ा खोला तो लाइबा को अपनी शदीद गलती का एहसास हुआ। वो डर कर बाहर निकलती भागने लगी, लेकिन सर हदीद उसे पकड़कर अपने हिसार में ले चुके थे। सर, आप यहाँ क्यों लाए हैं मुझे? प्लीज यहाँ से चलें, वो बहुत खतरनाक है, उसके मुलाजिम आपको भी नहीं छोड़ेंगे। वो खौफ से सर हदीद के गले लगती हुई बोली, लाइबा ट्रस्ट मी, आज जो होगा तुम्हें सिर्फ खुशी होगी, मुझ पर भरोसा रखो। वो उसे यकीन दिला रहा था। लाइबा एक पल के लिए उसके कॉन्फिडेंस पर हैरान रह गई। वो उसे हाथ थामकर पूरे हक से घर के अंदर लाया और जब वो लाउंज में आया तो शाहरून उसे देखकर ठहर गया। लाइबा डरते हुए सर हदीद के पीछे छुपने की कोशिश कर रही थी। हदीद भाई, आप? और लाइबा, ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है? शाहरून खानजादा की बात सुनकर वो चौंक गई, क्योंकि उसने हदीद को अपना भाई कहा था। हदीद गुस्से में आगे बढ़ा और शाहरून को मारना शुरू कर दिया। हैरत की बात थी कि कोई मुलाजिम हदीद को रोक नहीं रहा था और ना ही शाहरून उससे बदतमीजी कर रहा था। भाई, क्यों मार रहे हैं आप? इस लड़की की वजह से? क्या लगती है ये आपकी? वो तकलीफ से पूछ रहा था। माफी मांगो इससे, उसके आगे हाथ जोड़कर, जो कुछ जुल्म तुमने इसके साथ किया उसकी माफी मांगो, क्योंकि ये मेरी मोहब्बत है। सर हदीद की बात सुनकर ना सिर्फ लाइबा बल्कि शाहरून भी दंग रह गया। लाइबा को यह सदमा बहुत गहरा पहुंचा था कि शाहरून और सर हदीद सगे भाई हैं। शाहरून अपने बड़े भाई से बहुत डरता था, इसीलिए सिर्फ उन्हीं की वजह से वो दिल में नफरत लिए चेहरे पर परेशानी सजाकर लाइबा के आगे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगा। लाइबा ने सोचा नहीं था कि इस जैसा मगरूर, जिद्दी और कम हैसियत समझने वाला शख्स आज उसी के आगे हाथ जोड़कर माफी मांगेगा, वो भी सर हदीद के कहने पर। लाइबा पहले ही डरी हुई थी, इसलिए उसने डरते हुए उसे माफ कर दिया। वो अब भी हारून को अपने लिए खतरा समझ रही थी। सर हदीद ने अपनी शाल शानों से उतारकर लाइबा के वजूद पर डाली। जब शाहरून को लाइबा ने माफ कर दिया तो सर हदीद उसे हाथ से थाम कर पूरे हक से उस घर से लेकर वापस गाड़ी में आए थे ताकि उसे उसके घर छोड़ दें। आपने कभी बताया नहीं कि शाहरून आपका भाई है, और क्या आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो गाड़ी में बैठी बेयकीनी से पूछ रही थी। सर हदीद मुस्कुराए और उसे अपने साथ रेस्टोरेंट ले आए। चलो आओ डिनर करते, तुम्हें सब सवालात के जवाबात देता हूं। वो कुछ देर बाद उसे एक रेस्टोरेंट ले आए। उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया और उसे अपनी माजी की कहानी सुनाते कहा कि वो अपने घर वालों के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे। वो दूसरों की इज्जत करने वाले नरम दिल इंसान थे, जबकि शाहरून उनके बरक्स था। वो बिगड़ चुका था। लड़कियों से दोस्ती करना, उनके साथ वक्त गुजारना उसे बहुत पसंद था। वो ऑफिस में भी हेरा फेरी से काम लेता, जिस वजह से हदीद को इंतहा का गुस्सा आया, और इन्हीं बातों की वजह से उसकी अपने घर वालों से लड़ाई हो गई और वो रूठ कर सबसे अलग रहने लगा और उसने डैड का बिजनेस छोड़कर यूनिवर्सिटी ज्वाइन कर ली। चूंकि इस बार हदीद जिद में आ चुका था, इसीलिए उसने फैसला कर लिया था जब तक शाहरून की अकल ठिकाने पर नहीं आएगी वो घर वापस नहीं आएगा।
वो अपने भाई की हरकतों से इतना तंग आ चुका था कि उसने शर्मिंदगी के मारे कभी किसी को ये नहीं बताया था कि वो शाहरून का भाई है। उसने अपनी पहचान सबसे छुपा कर रखी थी, क्योंकि उसे अपने डैड का ये रवैया पसंद नहीं था कि वो शाहरून को हद से ज्यादा ढील दे रहे थे। तो बस यही वजह है मैं 3 साल से अपने घर से दूर हूं। कभी कभी वहां जाता हूं, और जहां तक मोहब्बत की बात है तो मैं वाकई तुम्हारे लिए पाकीज़ा जज्बात महसूस करने लगा हूं। तो मुझे शाहरून जैसा मत समझना। सरहदीद की बात सुनकर वो मुस्कुराई थी। उसका सर और निगाहें झुक गई थी। पहली मर्तबा उसने सरहदीद को अपनी इतनी फिक्र करते देखा, और जब उन्होंने इस पर आज इज्जत से अपनी शॉल डाली थी तभी उसे इस बात पर यकीन आ गया था कि वो शाहरून से कितने अलग थे। वो लड़कियों की इज्जत करने वाले थे, ना कि शाहरून जैसे जो दूसरी लड़कियों की इज्जत लूटते हैं। क्या मैं तुम्हारे जज्बात जान सकता हूं? सरहदीद ने उसके आगे हाथ करते पूछा। इतना तो वो समझ चुके थे कि लाइबा भी उनके लिए वही महसूस करती है जो वो करते हैं। लाइबा ने लरसते हुए अपना नाजुक हाथ उनके हाथ पर रख दिया। वो बचपन से मोहब्बत के लिए तरसती आई थी, और अब जब उसे इतनी मोहब्बत मिल रही थी तो वो कैसे इनकार कर देती, कैसे उस मोहब्बत को ठुकरा देती। उसने इस बात में सर हिला दिया। शाहरून ने खूबसूरत सी अंगूठी उसकी नाजुक उंगली में पहना दी। उन्होंने खुशगवार माहौल में डिनर किया और वो बजाते खुद उसे छोड़ने के लिए उसके घर आया। ताई और उनकी बेटियां उससे हसद में आ गई थी कि अमीर लड़के क्यों लाइबा के लिए दीवाने हो गए थे, पहले शाहरून और अब सरहदीद। लाइबा बहुत खुश थी और अब उसे कुछ भी बुरा नहीं लग रहा था। ताई की डांट भी सुनकर वो हंस रही थी। हदीद लाइबा के बारे में संजीदा था, इसलिए उसने अपने घर वालों से नाराजगी खत्म की और पूरे खुलूस और इज्जत से लाइबा का रिश्ता लेने अपने घर वालों के साथ उसके घर आया। लाइबा, मैं जल्दी शादी चाहता हूं, क्या तुम्हें कोई एतराज है? उसने अकेले में लाइबा से पूछा तो वो शर्मा गई और नफी में सर हिला दिया। वो हदीद के बगैर मजीद रहने का सोचकर ही बेचैन हो गई थी। पहली मर्तबा हदीद की मोहब्बत ने उसे खास बनाया था। वो यकीन कर चुकी थी कि वो मनहूस नहीं है। हदीद से शादी करके वो इस बड़े से घर की मालकन बन गई थी। ताई उसे देखकर रश करती थी कि जिस लड़की को वो मनहूस कहती थी उसका नसीब कितना शानदार निकला था। शाहरून खानजादा भी दिल ही दिल में इस बात पर जलता था कि जिस लड़की को वो कम हैसियत कहता था आज वो उसी के घर में मालकन की हैसियत से मौजूद थी। हदीद की मोहब्बत ने लाइबा को मुकम्मल कर दिया था, सो वो उसका हर दुख दर्द ख़त्म करके उसे खुशियां देने में कामयाब हो गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें